Hello students. Students, as you know that we are completing chapter number 9, that is sequence and series, okay? And in the last part of the video, we have discussed about GP, geometric progression. What is GP? What is the general term of the GP, and what is the sum of first n terms of an GP? So that much thing we had discussed, student. So today we will solve some question based upon the general term of the GP as well as the sum of GP. After that we will study the geometric mean, okay? The geometric mean of two numbers, okay? So let's start from some questions. So see students, the first question, it is the example of your book. In a question it is given that in a GP, the third term is 24. The third term is 24. And the sixth term is 192. Find the 10th term. Find the 10th term. ठीक है? So this is the question. This is the first question we are doing based upon GP. So see student, what is given? In a GP, the third term is 24 and the sixth term is 192. So we have to find its 10th term. So student, I told you that in GP, the general term means nth term. Nth term we know in GP. In GP, the nth term is represented by what? The nth term is an equal to a into r n minus 1. ठीक है? This is the formula of nth term. ठीक है? अब इसी में n की वैल्यू आप पुट करते जाओगे तो आपको वो टर्म की वैल्यू मिलती जाएगी. सो फर्स्ट थर्ड टर्म इज गिवन, मतलब कि इस जीपी का थर्ड टर्म गिवन है. तो अगर n इक्वल टू 3 पुट कर दे, इफ n इक्वल टू 3 पुट करे, सो वी विल गेट a3 एंड a3 विल बी इक्वल टू ar3 minus 1. सो a3 इज इक्वल टू ar स्क्वायर. क्योंकि हम जो जीपी पढ़े थे स्टूडेंट, पहला टर्म होता था a, दूसरा होता था a इंटू आर, तीसरा होता था a इंटू आर स्क्वायर, चौथा होता था a इंटू आर क्यूब, ऐसे एंड सो ऑन. तो थर्ड टर्म a3 is equal to ar square we know, and the value of third term is given, that is 24. So in place of a3 we can write 24. So 24 is equal to ar square. ठीक है? 24 is equal to ar square या ar square is equal to 24. Suppose it is equation number 1. ठीक है? Now अगर अब कौन सा टर्म दिया हुआ है? 6 टर्म. यानी कि अगर n इक्वल टू 6 पुट कर दे इस वाले में, तो we will get a6 and a6 will be equal to a into r 6 minus 1. So a6 is equal to ar to power 5. ठीक है? Now a6, the value of 6 term is given, that is 192. So it is 192 is equal to ar5 या ar5 is equal to 192. It is suppose equation number 2. अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है? a और r की वैल्यू. तो एक काम करो स्टूडेंट, देखो माइनस करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा. आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दो. ठीक है? सो इस जीपी में कोई भी टर्म निकालने के लिए या सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दो इक्वेशन है अगर, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं जिससे एक चीज कैंसिल हो जाए. तो अगर इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? a r टू पावर 5 डिवाइड बाई a r स्क्वायर इज इक्वल टू 192 डिवाइड बाई 24. ठीक है? आएगा? अच्छा, यहां पे a और a कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? r टू पावर 5 डिवाइड बाई r टू पावर 2 इज इक्वल टू 192 को 24 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा. ठीक है? यहां पे 8 आएगा और r टू पावर 5 और r टू पावर 2 कैंसिल हो गया. क्या बन जाएगा? r टू पावर 3 यानी कि r क्यूब इज इक्वल टू 8. ठीक है? अच्छा, r की वैल्यू 2, तो यहां से r की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 8. ठीक है? दैट विल बी द क्यूब रूट ऑफ 8. सो r विल बी इक्वल टू 2. अब यहां से r मिल गया आपको, तो किसी भी इक्वेशन में r की वैल्यू पुट कर दो तो a मिल जाएगा. सो आई एम राइटिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ar square is equal to 24. So put the value of r here. a into 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 या a into 4 is equal to 24.
so a is equal to 24/4, so a will be 6, यानी कि फर्स्ट टर्म 6 and common ratio 2, so we have to find the 10th term ना, so 10th term will be what, 10th term यानी कि a10 will be equal to a into r 10 minus 1, यानी कि a10 को हम लोग क्या लिखते हैं, a into r to power 9, मतलब कि जो टर्म है उसमें उससे एक कम r का मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि अगर सेकंड टर्म है तो एक r का मल्टीप्लाई होगा, थर्ड टर्म है तो 2r का मल्टीप्लाई होगा a में, फोर्थ टर्म है तो 3r का मल्टीप्लाई होगा, वैसे ही अगर 10th टर्म है तो कितने r का मल्टीप्लाई होगा आपस में, 9r का, तो r to power 9, इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा। तो a10 हमें निकालना है, सो द वैल्यू ऑफ a10 विल बी, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड r, सो a इज 6 एंड r इज 2 to power 9, ठीक है। 2 का पावर 9 स्टूडेंट होता है 512, 2 का पावर 9 512 होता है आई थिंक, सो a to the 10th term will be 3072, ठीक है, सो द 10th term will be 3072। तो इस तरह आप किसी जीपी में अगर कोई पर्टिकुलर टर्म दिया हो, जैसे एपी में देता था कि ये वाला टर्म इतना है, ये वाला टर्म इतना है, तो ये टर्म फाइंड करिए, तो उसमें आप ए और डी फाइंड करते थे। इसी तरह अगर इस जीपी में दिया होता है तो दो इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे डिवाइड करके, उसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, एक वेरिएबल बचेगा, उस एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, और उस वेरिएबल की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो दूसरे वेरिएबल की आ जाएगी, उसके बाद आपको जो टर्म निकालना है फॉर्मूले में पुट करके निकाल लो। तो इस तरह स्टूडेंट आप जीपी के क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराते हैं, ये तो हो गया नंबर ऑफ टर्म्स पे, ठीक है, कि कौन सा टर्म निकालना है। चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं सम से रिलेटेड। सम से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद नहीं तो हम जियोमेट्रिक मीन बताएंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत इजी है, जैसे एपी में लगाते हो वैसे ही जीपी में लगाना है, नथिंग एल्स, ठीक है, एंड इट इज वेरी इजी, ये चैप्टर ही बहुत इजी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ find the sum of first n terms and the sum of first 5 terms of the geometric series and series है आपकी 1 plus 2/3 plus 4/9 plus and so on, ठीक है। सीरीज आपको पहचानने आता है, सीरीज सबको पता है, अगर कोई सीक्वेंस दिया हो तो उससे रिलेटेड सीरीज कैसे लिखते हैं, उन सारे टर्म्स का सम, तो ये सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जीपी है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। तो हमको पहले इसके फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है, और उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म करना है, ठीक है। तो देखिए सीरीज क्या है स्टूडेंट, हमारे पास सीरीज है, जो सीरीज है हमारे पास दैट इज 1 plus 2/3 plus 4/9 plus and so on। तो इस सीरीज को अगर हम पहचाने तो इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 1, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं a से, तो a इज इक्वल टू 1, एंड इस सीरीज का जो r है, r मतलब कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो निकालते कैसे हैं, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म इज 2/3 डिवाइडेड बाय 1, तो 2/3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2/3 आएगा, तो यानी कि इसका जो कॉमन रेशियो है वो 2/3 है, ठीक है। मतलब कि ये तो सीरीज दिया हुआ है, मान लो इससे रिलेटेड आपको सीक्वेंस लिखना होता तो सीक्वेंस क्या लिखते हैं आप 1 2/3 4/9, यही तो लिखते हैं, ये सीक्वेंस और ये सीरीज है। सीरीज हमेशा सम के टर्म्स के रूप में होता है,
टर्म्स के सम के रूप में होता है। तो इससे अगर पहचानते हैं आप तो फर्स्ट टर्म ए हो जाता, और कॉमन रेशियो निकालते कैसे हैं, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो 2/3 विल बी डिवाइडेड बाय 1, सो कॉमन रेशियो विल कम 2/3 ओनली। आप अगर ये दो टर्म भी लेते तब भी कॉमन रेशियो 2/3 ही आता, ठीक है। अब मुझे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालना है, तो वी नो दैट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स of GP is Sn equal to A 1 minus R to power n divided by 1 minus R। ये पढ़ा है हमने, और एक और फॉर्मूला पढ़ा है ऐसा, एक और फॉर्मूला पढ़ा है Sn is equal to A R to power n minus 1 upon R minus 1। दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन कौन सा कब यूज करते हैं, तो जब R की वैल्यू, मैंने बताया था जब R की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और जब R की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। है तो दोनों ही सेम, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पे 1 माइनस आर टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर है, यहाँ पर आर टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 2/3 है, जो कि आर की वैल्यू 2/3 है, जो कि 1 से कम है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बस सारी वैल्यू पुट कर दो, ए पता है आपको, आर पता है, तो एस एन इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 1 माइनस 2/3 का पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस 2/3, यही होगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो इस 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर ब्रैकेट में बच जाएगा 1 माइनस 2/3 का पावर n, और नीचे बचेगा 1/3, ठीक है। तो ये 1/3 जब ऊपर जाएगा तो आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस 2/3 का पावर n। बस यही हो जाएगा आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। अरे ये 1/3 है ना, ये 1/3 है, तो ये 3 ऊपर जाएगा तो ये 3 यहां आ गया और ब्रैकेट वाला रह जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब आपको निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ना, उसके आगे क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो अगर n की जगह 5 पुट कर दोगे, तो n की जगह अगर 5 पुट कर दें तो वी विल गेट सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट, जैसे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है वैसे ही सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। सो ये हो जाएगा S5, और जहां जहां n होगा इस वाले में वहां 5 पुट कर दोगे, तो S5 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस 2/3 का पावर 5। तो S5 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 का पावर 5 हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 243, ठीक है, 243 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट, तो ये आएगा 3 इंटू एलसीएम लोगे तो 243 माइनस 32 होगा, और 243 माइनस 32 हो जाएगा आपका 211 अपॉन 243, और ये 243 3 से कैंसिल हो जाएगा 81 टाइम्स। तो जो S5 होगा, कहां लिखूं मैं, स्पेस नहीं है, यहां के बाद मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। तो जो S5 होगा स्टूडेंट, S5 मेरा ये आया था 3 इंटू, ये आया था 3 इंटू 211 बाई 243 था ना, ये इसको कैंसिल कर दिया कितने टाइम्स, 81 टाइम्स। सो S5 इज इक्वल टू 211 अपॉन 81। सो ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला वाली अप्लाई करना है, ए निकाल लो, आर निकाल लो, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन इट। आफ्टर दैट वन मोर क्वेश्चन वी विल सॉल्व। Now student, one more question based upon GP is, see how many terms of the GP 3, 3/2, 3/4 are needed to give the sum 3069 upon 512। मतलब GP के ऐसे कितने टर्म्स को आपस में ऐड किया जाए जिससे सम कितना आ जाए 3069 अपॉन 512। मतलब कि एक GP दिया हुआ है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और उसका सम दिया हुआ है, और उससे ये फाइंड करना है कि कितने टर्म्स को ऐड किया जाए जिससे उसका सम 3069 अपॉन 512 हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस क्वेश्चन में n निकालना है, ठीक है, n निकालना है, सम गिवन है। तो पहले जो जो चीज गिवन है वो फाइंड आउट कर देते हैं।
इस प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है वो है 3, फर्स्ट टर्म है 3। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सो 3/2 डिवाइड बाय 3, यही तो होता है a2 by a1। a2 by a1 लिखो चाहे a3 by a2 लिखो, ठीक है। डिफरेंस रेशियो निकालते हैं यहाँ पे, तो कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 से 3 कट गया तो ये कॉमन रेशियो आ जाएगा 1/2, ठीक है। अच्छा a निकल गया, r निकल गया, SN दिया हुआ है, SN दिया हुआ है 3069/512, क्योंकि सम तो दिया ही हुआ है तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, इसका मतलब हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं। अब देखो जो यहाँ पे जो r आया है वो 1/2 है, यानी कि 1 से कम है, तो वी विल यूज द फॉर्मूला, वी नो दैट SN इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस r टू पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r, ठीक है। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज व्हाटएवर इज गिवन, ठीक है। तो SN इज गिवन दैट इज 3069 डिवाइड बाई 512 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 3, r कितना है स्टूडेंट, r है 1 माइनस 1/2 टू पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2, ठीक है, ये है। अच्छा आप ध्यान दो, क्या कर सकते हैं हम लोग, ये वाला 3 इसको कैंसिल कर देगा स्टूडेंट, ये वाला 3 इधर किस नंबर को कैंसिल कर देगा, जैसे कि होता था ना, अगर 3/x लिखा हुआ है और यहाँ 15/7 लिखा हुआ है तो ये कैंसिल करता था ना इस तरह 5 टाइम्स, वैसे ये वाला 3 इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। या अगर कैंसिल नहीं भी करना है तो देखो कैसे करेंगे, पहले 3069 डिवाइड बाई 512, इसको मैं लिख सकता हूं 3/1, इसको लिख सकता हूं 3/1 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 का पावर n, और डाउन साइड क्या आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो उसको 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये तो एक ब्रैकेट, इसको अलग मान लो, तो अब इसको मैं लिख सकता हूं 3069 डिवाइड बाई 512 इज इक्वल टू 3/1 एंड 1 माइनस 1/2 का पावर n, और ये 1/2 जब मल्टीप्लाई होगा ऊपर तो हो जाएगा 2/1, ठीक है। तो ये चीजें आएंगी। अब देखो ध्यान से, ये आ गया, देखो अच्छा अब यहां पे लिखा मैंने 3069 डिवाइड बाई 512 इज इक्वल टू, अच्छा 3 और 2 का मल्टीप्लाई मत करो, हाँ मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो गया डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 1 एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/2, ये मैंने 1 इसलिए लिखा है ताकि आपको वो डिवीजन समझ में आ जाए, ठीक है। अब आप क्या करो, इस 6 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये आ जाएगा 3069 डिवाइड बाई 512 इंटू 6 इज इक्वल टू 1/1 तो कुछ होगा ही नहीं, यानी कि क्या बचेगा, इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 का पावर n, ठीक है, यही बचेगा। इस 1 का तो कोई मतलब है नहीं, डिनोमिनेटर में 1 रहे चना रहे कोई मतलब नहीं होता उसका, ठीक है। अच्छा चाहो तो कुछ कैंसिल कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 1 0 2 3, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा बाई 2, अरे होगा ना, ये 3 से कैंसिल हो गया तो 1023 आएगा, और ये 3 से कैंसिल होगा तो 2 टाइम आएगा, तो यानी कि ये आ जाएगा 1023 अपॉन 500, सॉरी ये आ जाएगा 1024 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का पावर n, ठीक है। अच्छा अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ और इस नंबर को उधर ले जाओ, तो ये जब इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा 1/2 टू पावर n, और ये जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1023 अपॉन 1024। अब एलसीएम ले लो, तो जब एलसीएम लोगे तो 1/2 का पावर n इज इक्वल टू, जब एलसीएम लोगे तो 1024 आएगा, और यहां पे भी आएगा 1024 माइनस 1023, तो ये 1/2 का पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1024 आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब ये देखो, ये एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं इधर कर दे रहा हूं, ये चीज तो आपको मिल ही जाएगी क्वेश्चन से, तो अब देखो ध्यान से, सिंपल ही तरीका है, बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो आया हमारा, वहां के बाद मैं यहां लिख रहा हूं 1/2 टू पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1024, ठीक है। 1024 जो होता है स्टूडेंट वो 2 का पावर 10 होता है, ठीक है, 1024 2 का पावर 10 हो सकता है, तो इसको तो मैंने 1/2 का पावर n किया,
और इसको मैंने किया 1/2 का पावर 10, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 का पावर n इक्वल टू 1/2 का पावर होल पावर 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर करोगे 1 ही आएगा। तो इस 1/2 का पावर 10 को मैंने लिख दिया 1/2 का होल पावर 10, ठीक है। अब देखो दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो कंपेयर करेंगे पावर तो n विल बी इक्वल टू 10, ठीक है। देखो पहले मैंने यहां तक कर लिया था, इसके बाद मैंने देखा 1024, तो 1024 2 का पावर 10 होता है, ठीक है। आप देखना 2 का पावर 10 ही आएगा, जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 10 बार मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो 2 का पावर 10 लिखा। अब मुझे ऐसा ही लेफ्ट हैंड साइड चाहिए तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा, तो मैंने इसको लिख दिया 1/2 का पावर होल 10, तो दोनों साइड सेम बेस आ गया। अगर पावर सेम है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, सो दैट्स व्हाई n विल बी इक्वल टू 10, ठीक है। लिख लीजिए इसको। Now students, another very good question of GP is that the sum of first 3 terms of a GP is 13/12 and their product is -1. Then we have to find the common ratio and the terms. So student, if you remember, same type of question comes in the AP when the sum of first 3 terms of the AP is given and their product is given. So what terms we are taking? तो जब हम लोग AP में कोई 3 टर्म लेते हैं तब कब, जब उनका सम दिया हो क्वेश्चन में और उनका प्रोडक्ट दिया हो, तो 3 टर्म क्या क्या लेते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये हम लोग एपी में लेते थे, ठीक है। ऐसे ही जब जीपी में कोई क्वेश्चन हो और उसमें क्या दिया हो, उनके टर्म्स का फर्स्ट 3 टर्म्स का सम दिया हो और उनका प्रोडक्ट दिया हो, तो टर्म्स क्या क्या मानते हैं हम लोग मानते हैं a/r, a एंड ar, ठीक है। ये 3 टर्म मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो भी हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी आर a/r, a एंड ar, ठीक है। देखो जैसे एपी में आप माइनस कर देते ना कॉमन डिफरेंस, वैसे यहां पे कॉमन रेशियो को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर 3 टर्म जीपी में लेना हो तो a/r, a और a इंटू आर, ठीक है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में सम भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, तो जब प्रोडक्ट करोगे तो r और r कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। अदरवाइज एपी में जीपी का फर्स्ट टर्म a होता है, सेकेंड टर्म ar होता है, थर्ड टर्म ar² होता है, ठीक है। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उससे चलते हैं। क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ जीपी इज 13/12, सो वी कैन से क्या दिया हुआ है, a/r प्लस a इंटू r इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। इसमें चाहो तो a कॉमन ले सकते हो, a कॉमन लोगे तो क्या आएगा 1/r प्लस 1 प्लस r, या इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, a 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 13/12। सो सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या दिया हुआ है, उनका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, तो वी कैन से a/r इंटू a इंटू r इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है -1, तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां सम दिया था तो मैंने सम का लगा दिया, वहां प्रोडक्ट का दिया था तो मैंने वहां प्रोडक्ट का लगा दिया, तो a इंटू दैट विल बी a³ इज इक्वल टू -1। अब a³ की वैल्यू -1 है तो a की वैल्यू क्या होगी, तो इस केस में a की तो 3 वैल्यू होगी, क्योंकि जितना पावर रहता है उतने ही उसकी वैल्यूज होती हैं, लेकिन हम लोग केवल रियल वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो जब आप इसकी रियल वैल्यू कंसिडर करोगे तो a की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट वो होगी -1, क्योंकि -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही आएगा। तो यहां आप लिख देना वी आर कंसिडरिंग ओनली रियल वैल्यूज। एक्चुअल में a की 3 वैल्यू होगी, लेकिन 2 वैल्यू कॉम्प्लेक्स होगी या इमेजिनरी होगी, तो हम लोग कौन सी वैल्यू लेंगे जो रियल होगी, सो a की वैल्यू -1 लेंगे, ठीक है। सो वी आर कंसिडरिंग रियल वैल्यू ओनली, ठीक है, रियल वैल्यूज ओनली, रियल वैल्यूज ओनली, ठीक है। तो a की वैल्यू -1 मिल गई। अब जब a -1 मिल गया स्टूडेंट, तो आप इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट कर दोगे तो r मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से, इक्वेशन नंबर 1 है 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 13/12, ठीक है, 13/12।
ए की वैल्यू पुट कर दोगे तो -1 इन ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 13/12। अब सॉल्व करो इसको, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो इस साइड आ जाएगा -1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 13/12। 12 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, आर का मल्टीप्लाई उधर कर दो, तो -12 आर माइनस 12 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आर। ठीक है, अब इन सभी को उस साइड लेते जाओ, तो इस साइड बचेगा 0। 12 आर स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो +12 आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -12 आर जब उधर जाएगा तो +12 आर हो जाएगा, और -12 जब उधर जाएगा तो +12 और +13 आर। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 12 आर स्क्वायर प्लस 25 आर प्लस 12, ये बनेगा। ठीक है, इतना लिख लीजिए आप, फिर मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर दूं, क्योंकि बेटा स्पेस ज्यादा नहीं है इसलिए मुझे इरेज करना पड़ता है, अदरवाइज बोर्ड बड़ा होता तो इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उस टाइम के बाद मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 12 आर स्क्वायर प्लस 25 आर प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, तो फैक्टराइज जब करोगे तो 12 इंटू 12 144, और उसको ऐसे दो फैक्टर में डिवाइड करना है जिसका सम 25 आ जाए, तो 16 और 9, तो इसको लिख सकते हैं 12 आर स्क्वायर प्लस 16 आर प्लस 9 आर प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से 4 आर कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा 3 आर प्लस 4, और यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 आर प्लस 4 यह भी आए। ठीक है, बस, तो 3 आर प्लस 4 एंड 4 आर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आर की दो वैल्यू निकलेगी स्टूडेंट, यहां से एक आर होगा, अगर 3 आर प्लस 4 0 के बराबर होगा तो आर की वैल्यू हो जाएगी -4/3, और अगर 4 आर प्लस 3 0 के बराबर होगा तो आर की वैल्यू -3/4, दो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप एक बार आर लोगे, एक बार आर लो के तीनों टर्म निकाल लेना, फिर दूसरे वाली वैल्यू लेके तीनों टर्म निकाल लेना, तो क्या हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, अब देखो आर मिल गया, ए मिल गया, तो हम लोग तीनों टर्म लिख सकते हैं। सोचो, देखो व्हेन आर इक्वल टू, व्हेन आर कितना होगा -4/3, देन थ्री टर्म्स विल बी, क्या होगा, थ्री टर्म्स क्या क्या थे हमारे, a/r, a और a r स्क्वायर, यही था ना, सॉरी a r की वैल्यू और a की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू थी हमारी -1, ठीक है, -1 डिवाइड बाई -4/3, ये पहला टर्म हो गया, ये तो -1 ही रहेगा, और ये -1 इंटू -4/3। तो जब सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3/4 पहला टर्म, फिर -1 और फिर 4/3। तो ये हमारे फर्स्ट 3 टर्म्स हो गए जीपी के। ठीक है, जब r की वैल्यू -4/3 होगी तब ये टर्म आए, और जब व्हेन r इक्वल टू -3/4, स्टूडेंट्स दो वैल्यू है ना, तो पहले एक r की वैल्यू पुट करोगे तो एक सीक्वेंस मिलेगा, जब दूसरी पुट करोगे तो वैसे ही दूसरा सीक्वेंस मिलेगा। तो जब r की वैल्यू, a की वैल्यू तो दोनों में सेम ही रहेगी ना, r की दो वैल्यू आई है ना, एक तो एक ही आया है, तो a की वही वैल्यू रहेगी, r की वैल्यू चेंज होती रहेगी, पहले r की वैल्यू ये लिए है, दूसरे केस में वो लिए है, तो r की वैल्यू जब -3/4 होगी, देन थ्री टर्म्स विल बी a/r, a एंड a/r। तो a कितना है -1 और r है -3/4। ठीक है, a तो -1 ही है, और ये -1 इंटू -3/4, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 4/3 -1 एंड 3/4, तो ये आ जाएगा फिर से टर्म्स। ठीक है, तो एक जीपी हमको ये मिलेगा, दूसरा जीपी हमको ये मिलेगा, क्योंकि आर की दो वैल्यू है तो 2 जीपी मिलेगा।
ए तो दोनों में सेम था क्योंकि ए की वैल्यू एक ही आई थी, लेकिन आर की वैल्यू क्वाड्रेटिक से 2 वैल्यू आई थी। तो जब आर की वैल्यू ये लेंगे तब ये टर्म्स होंगे, और आर की वैल्यू जब ये लेंगे तो ये टर्म्स होंगे। तो कहने का मतलब है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आता है। तो पहले आप दो इक्वेशन बना लो, एक इक्वेशन से ई मिल जाएगा, उसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आर मिल जाएगा, आर की 2 वैल्यू मिलेगी। तो क्या करोगे, जब आर इतना होगा तब 3 टर्म ये होंगे, और जब आर इतना होगा तो अंदर 3 टर्म ये होंगे। ठीक है, तो इस तरह आप इस तरह क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताते हैं स्टूडेंट, उसके बाद फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट टर्म में हम लोग करेंगे जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। सॉल्व करोगे सब आएगा, बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इतना तो आपको आता ही है, इतना तो करना ही पड़ेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट आता है बच्चों को, सर ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिएगा, इट इज वेरी इजी ऑल्सो एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। नाउ फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस सेवन, 77, 777, 4 times 7, 2 n terms, 2 n terms। ठीक है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है 7, 77, 777, 7777 अप टू n टर्म्स तक इसका सम निकालना है। तो सम निकालना है तो उसके लिए हम लोग s यूज करेंगे, s इज इक्वल टू 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 7777 प्लस कहां तक, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। ठीक है, ये हमको करना है। ठीक है, तो पहले देखो हर एक टर्म में 7 तो है ना स्टूडेंट, हर एक टर्म में 7 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले 7 कॉमन ले लेते हैं, जो पहले कॉमन दिखता है वो लिख लेते हैं, और इसको मान लो Sn है ये। तो 7 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, अप टू n टर्म्स। अब ध्यान दो, ये 1 1 1 है ना, अब क्या कर दो स्टूडेंट ना, इसका एक पैटर्न होता है, पहले जो चीज कॉमन है वो कॉमन से कॉमन को कॉमन ले लो, उसके बाद 1 के टर्म से बचेगा। तो आप क्या करो, इस इस सीरीज में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 9 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो लिख सकते हैं हम लोग इसको 7 इंटू 9 अपॉन 9, और फिर बाद में यही सीक्वेंस आएगा, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक है, चलो अच्छा, अब देखो जो ऊपर वाला n है, जो न्यूमरेटर में आपने 9 का मल्टीप्लाई किया है, उसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इस 9 का मल्टीप्लाई पूरे अंदर कर दो। तो क्या आ जाएगा, 7/9 इन ब्रैकेट 9, यहां पर आ जाएगा 9, यहां पर आ जाएगा 99, यहां पे आ जाएगा 999, यहां पे आ जाएगा 9999 अप टू n टर्म्स। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान दो, अब इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो करेंगे हम लोग। 10 को क्या ले सकते हैं, 9 को हम लोग 10 के टर्म्स में क्या ले सकते हैं, 9 को हम लोग 10 के टर्म्स में क्या ले सकते हैं, 10 - 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, चलो ये लिख दिया। 99 को क्या ले सकते हैं, 100 - 1, और 100 को क्या ले सकते हैं, 10 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, इसी तरह 999 को ले सकते हैं 10 का क्यूब माइनस 1। ठीक है, और इसको ले सकते हैं 10 का पावर 4 - 1, कहां तक, अप टू n टर्म्स।
ठीक है। अब क्या करो आप स्टूडेंट, 10 वाले को अलग पैटर्न बना लो और 1 वाले का अलग पैटर्न बना लो। अब देखो 10 स्क्वायर 10 क्यूब, पहला टर्म था तो एक 10 था, दूसरा टर्म है तो 2 10 है, तीसरा टर्म है तो 10 को पावर 3 है, चौथा है तो 10 को पावर 5 है, अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें 10 और 1 को सेपरेट कर ले रहा हूं, तो ये आ जाएगा 7/9। अच्छा, क्या किया, 10 का एक ग्रुप बना लिया और 1 का एक ग्रुप बना लिया, तो 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस 10 का पावर 4 कहां तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा। अरे ये n टर्म्स तक ही तो जाएगा, तो ये 10 वाला हो गया, माइनस कॉमन लेने के बाद 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। ठीक है, देखो यहां तक कर लिया हमने फिर 10 को सेपरेट कर लिया, क्योंकि हर एक टर्म में 10 भी है और हर एक टर्म में 1 भी है, तो 10 भी n तक जाएगा और 1 भी n तक जाएगा। तो 10 जब n तक जाएगा तो 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस 10 का 4 अप टू n टर्म्स। उसके बाद -1 हर एक टर्म में है, तो माइनस कॉमन ले लिया, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स। ठीक है ना, इसके बाद मैं इधर कर रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है। अब देखो यहां के बाद यहां लिख रहा हूं मैं, तो Sn इक्वल टू 7/9। अब देखो ये वाला जो ये 10 वाला है ये जीपी बना रहा है, ये एक जीपी में होगा। ठीक है, जिसका पहला टर्म 10 होगा और कॉमन रेशियो भी 10 होगा। ठीक है, देखो 10 है, a की वैल्यू 10 है और कॉमन रेशियो भी 10 है, मतलब कि अगर a 10 है और कॉमन रेशियो भी 10 है तो ये सारे n टर्म्स का सम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके प्लेस पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, a इन ब्रैकेट r टू पावर n-1 अपॉन r-1, क्योंकि ये पूरा एक सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके सम को, जीपी के सम को। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, फिर -1 कहां तक 1 है स्टूडेंट, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास 1 है 50 टाइम्स, तो उनका सम कितना होगा। अगर मेरे पास 1 रुपया है 50 बार, तो मेरा पास कितना रुपया हुआ, 50 रुपया हुआ। तो वैसे ही अगर 1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स, तो इसकी जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा n। ठीक है, केवल n, क्योंकि n इंटू 1 करोगे तो n ही आएगा। तो 1 कितनी बार है, n टाइम्स, तो 1 इंटू n, तो उनका सम n हो गया। अच्छा, इसमें क्या ले सकते हैं हम लोग, इसमें ले सकते हैं 7/9। इस जीपी का पहला टर्म 10 है तो 10 लिखा, और इसका r भी क्या है 10, तो 10 टू पावर r-1 अपॉन 10-1। ठीक है, -n। ठीक है, ये एक जीपी बन जाएगा और ये एक एपी बन जाएगा। और 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बार है, n टाइम्स। अगर मैं ये बोलूं कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार, 10 बार, तो इनका सम कितना होगा, एक कितनी बार आ रहा है, 10 बार, तो उनका सम 10 होगा। वैसे ही अगर एक n टाइम्स आएगा तो उनका सम n होगा। ठीक है, और ये एक जीपी फॉर्म कर रहा है, तो जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और वो वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जिसमें r की वैल्यू बड़ी होती है 1 से। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व कर दो, बस खत्म, बस यही था इसमें। तो Sn इज इक्वल टू 7/9, ये हो जाएगा 10 टू पावर r-1 अपॉन 9 माइनस n। चाहो तो अपना आंसर ऐसे छोड़ दो या मल्टीप्लाई करके भी छोड़ सकते हो। तो जब मल्टीप्लाई करके छोड़ोगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, ये आएगा Sn इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 70/81, 10 का पावर r-1 माइनस 7/9 n। तो दिस इज द सम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ n टर्म्स। ओके, सो इसको एक बार देख लेना अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। आपकी बुक में ऐसे ही छोड़ दिया है, तो आप चाहो तो यहां तक भी छोड़ सकते हो या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो एज योर विश। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने स्टूडेंट्स करा दिए हैं। अब एक बचा हुआ है ज्योमेट्रिक मीन and the relation between AM and GM, that we will discuss in the next part of the video. So I think whatever things I taught you today, that is clear. Remaining thing we will discuss in the next part of the video. So till then, have a nice day. Take care. Thank you.